Theorem is sum of all possible subsets of a set having n elements is 2 to the power n. Okay. Let a set A is equal to A1, A2, A3, AN having n elements. So having n elements. Okay. So therefore, number of possible subsets having no element is equal to 5 is equal to 1. That is 5. We have only one subset having no element, that is 5. 5 is subset of all the sets. 5 is subset of all the sets. Okay. Now, number of possible subsets having single element, that is one element, is equal to singleton set A1, A2, A3 up to AN, that is equal to n. But after this, we will not find how many number of possible subsets having two elements. We cannot find it. But we have a tools and technique in mathematics that we can find it. So, what is the technique? Suppose we have to choose two out of 3. Then we have a formula. 3C2. If we have to choose 2 out of 3 elements, we have a formula 3C2, that is NCR, where R is less than equal than N. We will use this formula. You don't have to worry about it. That what is this formula? When we will learn binomial theorem, then we will prove it. Okay. Hello, respond me. Yes, sir. Okay. So now number of possible subsets having two elements is equal to NC2, and this one may be written as NC1 and this is written as NC0. We have to
choose one element, no element out of n element, then we will use NC0. If we have to choose one element from n element, we will use NC1. If we have to choose two elements out of n elements, we will have NC2. So number of possible subsets having two elements is equal to NC2, and therefore number of possible subsets having n element is equal to NCN. Okay, now adding all these, we have total number of possible subsets having n elements is equal to NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCN. Okay, and we have the formula NC0, NC1, NC2 plus NCN is equal to 2 to the power n. Okay, note down it. Hello, is it clear? NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCN is equal to 2 to the power n. Hello? Yes, sir. Yes, sir. May I read the lower part of the board? No, sir. Now, I will clear you how I have written NC0, NC1, NC2 up to NCN is equal to 2 to the power n. Suppose we have x plus y to the power 1 is equal to x plus y. X plus y to the power 2 is equal to x square plus 2xy plus y square. X plus y whole cube is equal to x cube plus thrice x square y plus thrice x y square plus y cube. X plus y to the power 4 is equal to x4 plus, and now it is not possible to write the expansion of x plus y to the power 4. Okay, so we will learn Pascal's triangle. Okay, so we will learn Pascal's triangle. Pascal's triangle. Okay, we will learn Pascal's triangle. 1 1 1 1 1 1 1 1 plus 1 2 3 3 1 1 4 6 4 1
1, 5, 10, 10, 5, and 1. So this is known as Pascal's triangle. This is known as Pascal's triangle. You will have in your mind that what is this? One, we have taken a equilateral triangle, and we have mentioned one on the three vertices here. Again, we have made 2, 1, 2, 3 equilateral triangles having same side, and this side is added. 1 plus 1 is equal to 2, and 1 remaining on the vertices, and in this way we will be proceeding. समझ रहे हो ना? ये राइट एंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने लिया, इसके तीनों वर्टिसेस पे 1 लिखा, फिर हम तीन राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, फिर तीनों के वर्टिसेस पे 1 1 लिखा, इसको हम बढ़ाते गए, 1 plus 1 ये 1 और ये 1 1 plus 1 2. अब देखिए x plus y to the power 0 is equal to 1. ये 1 क्या है? तो 1 is the coefficient 1. X plus y to the power 1 is equal to x plus y. What is the coefficient of x? 1. And what is the coefficient of y? Is 1. Similarly, x plus y to the power 2 is equal to x square plus 2xy plus y square. So what is the coefficient of x square? This one. What is the coefficient of second term? This one. And what is the coefficient of y square? This one. In this way, x plus y whole cube is equal to, we put variable x and we put maximum power 3. From here, power of x reduces by 1. So, and we put here the coefficient of second term 3. We reduces the power of variable x by 1. So x square into, now y, power of variable y is equal to 1. And then in third term coefficient is 3. And power of x reduces again by 1. X 2 minus 1, that is 1, and we increases the power of y by 1. So here y is equal to 2, and then coefficient of y cube is equal to 1, and we increases the power of 2, y square by 1, that is y cube. Now similarly, x plus y to the power 4, we may expand x plus y to the power 4. Accordingly, we put here coefficient of x to the power 4 is equal to 1 plus here coefficient of second term is 4. Then power of x reduces by 1, x cube, and power of y increases by 1 plus 6. Coefficient of third term is 6. X reduces by 1, x square, and y increases by 1, y square plus 4. 4 x into y cube plus 1 into y to the power 4. In this way, you may expand it by your own, x plus y to the power 5. Hello? सर फिर से एक बार बता दीजिए ना इसको, तो फिर से समझा दीजिए। हाँ ठीक है। अब देखो, ये हमने जो लिया है ये पास्कल ट्रायंगल है, एनसीईआरटी बुक में है आगे, ठीक है, लेकिन हम तुमको इसी में बता रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत होगा तो तुमको बहुत आसान रहेगा। ये हमने क्या किया, ट्रायंगल, ये तो समझ गए हो कैसे हमने लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के तीनों वर्टिसेस पे वो लिख दिया, फिर इसको हमने प्रोड्यूस किया, ठीक इक्वल लेंथ का हमने 1 लिया, ये भी इक्वल लेंथ है, 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 और इस दोनों को सम अप करके 2 लिखा, इधर 1 इधर 1, कॉर्नर पॉइंट पे हमेशा 1 रखना है। फिर इसको हमने आगे बढ़ाते गए, ठीक है,
ये 1 + 2 3, 2 + 1 3, ठीक है। इसी तरह से 3 + 1 4, इस तरह से हमने बढ़ाया। अब देखो ये जो हमने लिखा 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, ये सब बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, ठीक है। ध्यान रखना x + y का पावर 2 है तो यहाँ 3 टर्म होगा, x + y का पावर 3 है तो एक टर्म बढ़ जाता है, ये 4 टर्म होगा इसमें। ये 4 है तो 5 टर्म होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब x + y टू दी पावर 5 है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें हमने 4x + y टू दी पावर 4 है तो 3 में देखो x का मैक्सिमम पावर हमने दे दिया और इसके बाद सेकंड टर्म में हम बढ़े प्लस करके, ठीक है। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट हमने लिख दिया 3 और x का पावर 1 रिड्यूस करते जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। और y का पावर यहाँ 0 है और y का पावर में 1 बढ़ाते जाएंगे हम इधर, ठीक। तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट हमने 3 लिखा, एक्स क्यूब के जगह एक्स स्क्वायर लिखा क्योंकि एक रिड्यूस कर देना है इसका पावर। फिर y यहाँ हम शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ y का पावर 0 मतलब 1 और y का पावर यहाँ 1 इंक्रीज किया हमने, ठीक। फिर थर्ड टर्म का कोफिशिएंट यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमने 3 रखा है तो 3 और x का पावर एक और रिड्यूस हो गया तो x का पावर 1, ठीक है। और y का पावर एक और बढ़ गया तो y स्क्वायर, ठीक। फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट हमने 1 लिख दिया, 1 × y³ 1 ही होगा, इसलिए 1 × y का पावर मैक्सिमम हमने दे दिया 3, क्यों? क्योंकि y इंक्रीज कर रहा है और x टू द पावर 0 हो जाएगा इसमें, तो x टू द पावर 0 = 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह से x + y टू द पावर 4, हमने x का पावर मैक्सिमम रख दिया प्लस कोफिशिएंट हमने रखा सेकंड टर्म का 4 और x का पावर घटा दिया 1 x³ y बढ़ा 1 प्लस थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 6, x को रिड्यूस किया 1 x² हो गया, y को इंक्रीज किया 1 तो y 1 + 1 2 हो गया प्लस फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट हमने लिखा 4, x को 1 रिड्यूस किया तो 2 था तो 1 हो गया, y का पावर इंक्रीज किया तो y 2 था 3 हो गया प्लस कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म हमने 1 लिया, 1 × y का पावर मैक्सिमम 4, ठीक है। अब देखो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं तुमको x + y टू दी पावर 5 का। अब बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम पावर सर x टू दी पावर 5 प्लस कोफिशिएंट कितना रखेंगे 5x to the power 4. 5x to power 4 y into y y यहाँ से शुरू हो जाएगा प्लस nx³ y square NX to y square. x³ y स्क्वायर प्लस 10 5x square by y cube स्क्वायर बाय 3 cube क्यूब, ठीक है। yes प्लस 5x 5 to the y टू दी पावर 5x 4 4 और प्लस y टू दी पावर मैक्सिमम 5, ठीक है। yes sir अच्छा अब हम इसको एक एक्सटेंशन और बढ़ा देते हैं और तुमको बोलेंगे लिखने के लिए, सब काम मिलाएंगे कि सब समझ गए और सीखते भी नहीं। नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, आराम से समझो, यानी दिक्कत होगा फिर हम बताएंगे। तुम क्यों नहीं जा रही है? अब देखिए ये हो गया x + y टू दी पावर 5 का, x + y टू दी पावर 6 को एक्सपेंड करके हमको बताओ। सब अपने से करोगे, कोई किसी का देखेगा नहीं या पूछेगा नहीं। हेलो x + y टू दी पावर 6 I'm just giving you 2 minutes for expansion. X + y to the power 6. हो गया सर। Here you हो गया have to सर। take
दो कोफिशिएंट। अब देखो मैं लिख रहा हूं एक्सपेंशन, सब अपना अपना कॉपी मिलाओगे, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम x का पावर 6 रखा हमने, कोफिशिएंट फिर 6, x का पावर घटा दोगे कितना लिखोगे 5, y प्लस 15 x to the power 4 plus y square plus 10 x to the power 3 y cube plus 15 x square y to the power 4 plus 6 x y to the power 5 plus y to the power 6। ये एक्सपेंशन सबको आया है सर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई ना होगा 15x to क्या? the power 4 सर 15x to the power हाँ, 4 सर, यही है। करना। हाँ ठीक है, इसलिए कि हम एक और तरीका तुमको चेक करने के लिए बता देते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, इस दोनों का सम देखो यहाँ से 6 है और दोनों वेरिएबल का पावर 6 होगा, x4 इंटू वाई स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 6, 3 प्लस 6, 2 प्लस 4 6, ये 1 प्लस 5 6 और 6 ये होगा। वहां प्लस लिखा गया था उसको हटा लो, उसको इंटू कर दो। अब ये क्लियर है? हेलो यस सर। क्लियर है? अब देखो Yes. मान लो x प्लस वाई टू दी पावर 100 को एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो यू विल बी इन ट्रबल, है ना। यदि मान लीजिए x प्लस वाई को का पावर 100 कर दे हम, तो इसमें तुम लिख सकोगे? बोर्ड छोटा Yes, पड़ जाएगा ज़्यादा। हमको। Yes. अब देखो, हाँ अब देखो ये हम लिखाए हैं, Yes, sir. यस सर। अब देखिए ये 4 है, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट है, ठीक है ना, पावर 4 है तो n इक्वल टू 4 हम लिए हैं, ठीक है, और R1 R0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अब देखिए हम R इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट 1 को 4C4, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4C4। अब 4C, ये 4C0 लिखिए, अब बढ़ाते जाइए 4C1 4C2 4C3 और 4C4, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 कोफिशिएंट। 4C4 का अर्थ होता है 1, 4C1 का अर्थ होता है 4, 4C2 का अर्थ होता है 6, ठीक है। इसके लिए देखो एक फॉर्मूला है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल सर, क्या n है के ये बगल हम में बता कौन रहे हैं सा? आपको, ये आगे भी काम देगा। हेलो, Yes, sir. हाँ ये आगे भी काम देगा। अब देखिए 4C0, तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 r इक्वल टू 0, तो 4 फैक्टोरियल बाय r 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का अर्थ है कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 4 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन टिल द नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 फ्रॉम 1, ठीक है। फैक्टोरियल 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 6 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, ये समझ गया। और 0 फैक्टोरियल का ये याद रखना है कि 1 होता है, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल
1 into 2 into 3 समझ गए ना इससे। अब देखो Yes, sir. 4 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 0 फैक्टोरियल 1 और 0 minus 1 मतलब 4 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 इक्वल टू 1। समझ गया। अब देखो ये 4c1 is equal to 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 minus 1 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को 1 into 2 into 3 into 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है into 4 minus 1 3 फैक्टोरियल। तो 4 minus 1 3 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 तो ये काट दीजिए कितना बचा 4। तो 4c1 का वैल्यू कितना होगा 4 ठीक है। 4c2 का वैल्यू देखिए 4c2 का वैल्यू देखो ये लिख लिया सर। नो सर, हेलो नो सर नहीं वो लिखे। कैसे किए वहाँ पे कहाँ पे सर 4 फैक्टोरियल को जो आप तोड़े 1 into 2 into सर उसके बगल में। हाँ ये ना हाँ सर उसके 4 नीचे वाला कैसे फैक्टोरियल को देखो 1 into 2 into 3 into 4 0 फैक्टोरियल को हमने पहले कर दिया 1 है और फिर गुना और 4 minus 0 तो 1 4 minus 0 4 फैक्टोरियल तो 1 into 2 into 3 into 4 पूरा हम सबको काट दिए सबको काटे हैं तो 1 बचा ठीक है। 4c1 is equal to 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल r के जगह 1 है r फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल 4 minus 1 फैक्टोरियल तो 4 minus 1 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है 4 minus 1 3 हो गया तो 1 into 2 into 3 into 4 इसको हटा दीजिए या रहने भी देते तो ये डायरेक्ट हम 1 2 3 काट दिए 4 बच गया ठीक है। अब देखो इसका 4c2 ठीक है ना 4c2 is equal to 4 factorial by 2 factorial 4 minus 2 factorial is equal to 1 into 2 into 3 into 4 by 1 into 2 और into फिर 1 into 2 2 2 कैंसिल हो जाए is equal to 6 तो ये कोफिशिएंट है। हेलो कोफिशिएंट है अब समझ गए इसको। हेलो यस सर। अब देखिए अब मान लो x plus y to the power n है तो nc0 हम लिख सकते हैं इसका कोफिशिएंट n टाइम्स तक हम एक्सपेंशन करेंगे इसको तो हम लिखते हैं nc0 x का मैक्सिमम पावर दे दीजिए प्लस nc1 x का एक पावर घटा दो इंटू y का पावर एक बढ़ा दो प्लस nc2 x n minus 2 into y 2 up to ncn x का पावर 0 y to the power n ये समझ गए ना। यहाँ x लास्ट है इसीलिए x हट जाएगा y का मैक्सिमम पावर हमने दे दिया। अब देखो ये x is equal to 1 और y is equal to 1 हमने रखा इसमें तो 1 plus 1 is equal to nc0 1 का कोई भी पावर दोगे वही होगा प्लस nc2 1 का पावर n minus 1 प्लस y का पावर 1 nc2 1 का पावर n minus 2 into y2 प्लस ncn y का 1 का पावर n is equal to nc0 plus nc1 plus nc2 up to ncn और 1 plus 1 का पावर 2 तो 2 to the power n जो हमने फॉर्मूला लिखा है। हेलो यही हमने वहां यूज किया था फॉर्मूला समझ गए इसको। नो सर एक बार सर फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा अब देखो ये तो बताया थे हम इसका एक्सपेंशन कैसे करना है कोफिशिएंट लिखना है तो पहले टर्म का कोफिशिएंट अब हम NCR से लिखते हैं ठीक है तो NC0 0 इसके बाद 1 इसके बाद 2 इसके बाद n तक
ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया कितना, NC0, x का मैक्सिमम पावर, फिर NC1 इसका मैक्सिमम पावर से कम, घटाते गए x का पावर, y का पावर यहाँ से बढ़ाते गए, ठीक है, NC2 x n minus 2 into y का पावर 2 प्लस अप टू NCn, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, NCn, क्योंकि n टर्म तक एक्सपेंशन है, ठीक है ना, तो y to the power n। अब हम x is equal to putting x is equal to 1 and putting x is equal to 1 and y is equal to 1, इसमें हमने रख दिया 1 plus 1 का पावर n, और ये आपको है NC0, x का कोई भी पावर 1 ही होगा, 1 का पावर n 1, NC1 n 1 to the power n minus 1 into 1 का पावर 1, क्योंकि y भी 1 है, NC2 1 का पावर n minus 2 into y का पावर 2 प्लस अप टू NCn into 1 to the power n, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n, NC0, NC1, NC2 अप टू NCn। हेलो, अब हो गया क्लियर? सर x की जगह कोई और वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे? ने पुट करोगे तो फॉर्मूला हम प्रूव करना है ना हमको, यस सर। दूसरा वैल्यू करोगे तो दूसरा चीज आएगा, तब ये नहीं ना आएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, समझे? ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा हम बाइनोमियल भी टच कर लिए, समझे? यस सर। Yes, sir. और however if you have any doubt you just consult me, ठीक है, on WhatsApp or by on telephonic talk, okay? हेलो, सर इसका नोट्स भेज दीजिएगा। एकदम भेज देंगे, सबका नोट रखे हुए हैं, आज नहीं भेज पाए हैं क्योंकि लाइन कटा सर, इस हुआ है। क्लास को अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे? क्या? सर इस क्लास को सर यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं? हाँ, अपलोड करेंगे, पिछले क्लास का नहीं हुआ है इसलिए कि उस दिन भी लाइन कट गया था, समझे? आज लाइन ही नहीं था, अभी लाइन नहीं है मेरे पास, अपलोड कर देंगे इस क्लास को, ठीक से देख लेना, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. देखो कितना टाइम बचा हुआ है, अभी टाइम है, मिटा दे इसको। Yes, sir. अब लिखिए यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट्स ABC, set B having element E and F, then union, suppose we have set A having elements A, B, C in a basket and another set B having elements E, F in its basket. If we take union of set A and set B, then